Very good morning, students. Hello, hi. How are you? Yes, I know you are all very great and having a great time in your home. Okay. So yes, let us continue on our revision. That is our motion topic, which is the only topic there for test. तो उसके बारे में हम आज कुछ रिवीजन करते हैं ना, क्या क्या पढ़ा हमने, है ना. मोशन मतलब क्या है, जैसे ऑल दैट थिंग्स हमने क्या किया पढ़ा है वही हम रिवाइज करेंगे अभी. ठीक है, क्या क्या पढ़ा था हमने, क्या क्या पढ़ाया था आपको आपको मालूम है. हमने प्रॉब्लम्स लिए थे ना, एस इक्वल्स तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस पे. ओके, तो यस, सो व्हाट इज आवर बेसिक एम कि प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, है ना. तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस के ऊपर प्रॉब्लम करेंगे. और क्या सीखा था हमने, बहुत सारे ग्राफ्स सीखे, है ना. Yes, we had seen all the types of graph. We had also learned in our IIT syllabus, है ना. जो कुछ अलग-अलग ग्राफ्स थे, वो भी हम सभी ग्राफ को हमको स्टडी करना है और प्रॉब्लम्स ये दोनों की अच्छी तरह से हमें पढ़ाई करनी है. फिर क्या है, हमारे सभी टर्मिनोलॉजीज, डेफिनेशंस, कॉन्सेप्ट्स वो भी हम देखेंगे, है ना. Yes, तो स्टार्ट करते हैं विद द मोशन. Okay, students, the first one thing when you are seeing motion, क्या है, पहली बात दो चीजें हैं. One is rest and another is motion. What is rest? पहली चीज है रेस्ट. रेस्ट मतलब क्या? If what when we see an object is at rest, if a car is at rest, that means what? It is stationary with respect to the reference. There is a reference point. Okay, एक reference point है यहाँ पे. एक reference point है. तो reference point के हिसाब से इसका motion कुछ हो नहीं रही है. मतलब क्या ये है at rest. Definition क्या है? What is the definition of it? Yes, the definition of it. Yes, there are two things. One is rest and another is motion. Okay. Yes. Whenever the body is stationary with respect to the surrounding, you say the body is said to be rest. Okay. Yes. Whenever the body is stationary with respect to its surrounding, it is said to be in rest. It is said to be at rest. Okay. Surrounding मतलब कुछ reference point है. What is surrounding, students? Surrounding is nothing but a reference point. Okay. Yes. Next thing is motion. What is the next thing? It is nothing but a motion. What is motion? Yes. What is motion? Motion means movement, है ना? Yes. Whenever you see that a body changes its position with respect to some stationary object, with respect to the stationary object, the body is changing its position. The body क्या कर रहा है, अलग-अलग position ले रहा है ना. Whenever the body changes its position with respect to a reference point, you say that the body is in motion. So what is that? Whenever a body changes its positions, okay, yeah, okay. With respect to some reference, okay, yeah, you say that the body is in motion. Okay, you say that the body with respect to some reference, then you say that the body is in motion. You say that the body is in motion. ठीक है students, simple. Yeah. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे. यस, ओके, या और आपने क्या सीखा था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी सीखा था, है ना. व्हाट इज थर्ड टर्मिनोलॉजी? डिस्टेंस, है ना. डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस? Distance is nothing but the measure of the path covered by a body. Distance is nothing but the measure of the path traveled by the body. Distance is the measure of the actual path traveled by the body. Okay, distance is the measure of the actual path traveled by the body. Okay. Now, distance is always positive. It is a scalar quantity. Distance is always positive. It's always positive, and it is a scalar
नहीं होता है ना। मैं जॉगिंग कर रहा हूँ, मैं 10 मीटर जॉगिंग कर रहा हूँ, कहाँ पे कर रहा हूँ कोई लेना देना नहीं है, कौन सी दिशा में कर रहा हूँ कोई लेना देना नहीं है, तो जगह पे भी ट्रेडमिल पर भी कर सकता हूँ, है ना। तो डिस्टेंस क्या है, इट्स जस्ट पॉजिटिव वैल्यू, कभी नेगेटिव नहीं होता, इट इज नेवर नेगेटिव, एट द मोस्ट इट वुड बी जीरो, ज्यादा से ज्यादा वो जीरो हो सकता है। मैंने मेरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जीरो है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव या जीरो होता है, इट्स कैन बी नेवर नेगेटिव। So distance is the measure of the actual path traveled by the body and it is always positive and it is a scalar quantity, ठीक है। और हम आगे जाएंगे, yes, इसके बाद हम बारे में पूछेंगे डिस्प्लेसमेंट, है ना। What is the fourth thing that you will learn? Displacement. What is displacement? Displacement is the difference between the 2 points. Difference between the 2 points, है ना। Thank you. It is the difference between the 2 points. Yes, difference between the position of the 2 points. Let us write 4th point. Displacement. Displacement क्या होता है? Yes. So displacement is the shortest distance between the initial and final position of the object. The displacement is the shortest distance between initial and final position of an object, है ना। मतलब कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होता है, ये होता है ना। This is the shortest distance. This is the shortest distance point between point A and point B. अगर इसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट, है ना। ओके स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? डिस्प्लेसमेंट समझ में आया आपको? ये सब कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, या ओके, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिफ्थ पॉइंट लेट अस टेक इट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। What is uniform motion, students? Uniform motion मतलब क्या? What is uniform motion? है ना? If the body travels in equal distances in equal interval of time, then you say that the body is in uniform motion. If the body travels uniform motion, is uniform motion. If the body travels equal distances in equal interval of time. Equal interval of time. It is said to be in uniform motion. मतलब क्या? Equal distances in equal interval of time मतलब ये बॉडी चल रही है, कार है, क्या हो रही है? वो चल रही है ना। हाँ, 1 घंटा हो गया, 1 आवर। 1 घंटा में वो लेट अस टेक 10 किलोमीटर चली हुई, ठीक है, 10 किलोमीटर, ठीक है। और 1 घंटा हुआ, 1 मोर आवर, फिर 1 आवर में फिर भी उन्होंने 10 किलोमीटर से कवर किया। हेलो 10 और 1 आवर में उसने कितना कवर किया? 10 किलोमीटर से कवर किया। तो फॉर एवरी इन इक्वल डिस्टेंस इट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। हमेशा 10 किलोमीटर पर 1 आवर ही लगता है। इसका मतलब क्या? उसका स्पीड क्या है? यूनिफॉर्म है। तो उसका मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है। The motion is said to be uniform when it is covering equal distances in equal amount of time. So this is what uniform motion. आई बात समझ में? या वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? Which does not cover equal distances in equal amount of time. तो 1 आवर में अभी 10 किलोमीटर, 1 आवर में अभी 20 किलोमीटर, 1 आवर में 30 किलोमीटर, 1 आवर में 40 किलोमीटर, है ना। इक्वल इंटरवल is equal amount of equal interval of time, है ना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी डेफिनेशन लिख लो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का भी डेफिनेशन लिख लो, है ना। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? If the body travels
unequal distances in equal interval of time. Equal interval of time. है ना? Unequal distances equal interval of time. It is said to be uniform motion. It is said to be in non-uniform motion. अब ये non-uniform motion में देगा जब ये unequal distances travel करेगा equal interval of time, मतलब उतना 1 घंटा ही लगेगा, 10 किलोमीटर जा रहा है, 1 घंटे में आपको 20 किलोमीटर जा रहा है, लेट अस टेक 1 आवर। 1 आवर में ये गाड़ी ये आदमी लेट अस टेक ये आदमी यहाँ पे तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर, है ना। नेक्स्ट 1 आवर में वो कितना कवर करता है, नेक्स्ट 1 आवर में वो लेट अस टेक ज्यादा कवर कर लेगा 20 किलोमीटर कवर करता है, नेक्स्ट 1 आवर में वो सिर्फ 5 किलोमीटर कवर करता है ना। So every hour the distance is not equal, it is not equal, this is 10 is not equal to 20, it is not equal to 5, unequal है ना, unequal distances in equal interval of time, it is covering unequal distances in equal interval of time, तो इसको क्या बोलते हैं, non uniform motion बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, non uniform motion। What is a non uniform motion? The body covers unequal distances in equal interval of time। Clear है students? इतनी बात समझ में आ गई आपको? Yes, so let us move next point। ये हुआ यूनिफॉर्म मोशन, ये हुआ नॉन यूनिफॉर्म। अभी आपको आता है स्पीड, है ना। यूनिफॉर्म मोशन में मतलब कि इसका कुछ स्पीड होता है ना, जब भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसको क्या होता है, स्पीड होती है। स्पीड मतलब क्या, जो हमने अभी यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा, क्या पढ़ा हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, कि it covers certain distance in certain amount of time, है ना। Let us see now uniform motion। यूनिफॉर्म मोशन है ना, यूनिफॉर्म मोशन उसमें हम पढ़ रहे हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी ये हमने देख लिया है ना। यूनिफॉर्म मोशन में हम देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी। व्हाट इज स्पीड? स्पीड मतलब क्या, एक बॉडी को स्पीड है बोलते हैं तो क्या होता है, उसका कुछ मोशन आता है ना, इट गेट्स इनटू सम काइंड ऑफ मोशन, उसका कुछ मोशन होता है। तो मोशन होता है तभी क्या होता है, whenever a object is under motion, what happens, it covers distances but it also takes time। पर टाइम कैसे रिलेटेड है, कम टाइम में वो जितना ज्यादा स्पीड डिस्टेंस कवर करेगा हम बोलेंगे उसको स्पीड, पर उतना ही डिस्टेंस वो बहुत टाइम ले रहा है तो हम क्या बोलेंगे, अरे स्पीड बहुत कम है। तो स्पीड का फॉर्मूला हम बना सकते हैं कैसे, ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो स्पीड कम है, कम टाइम ले रहे हैं तो स्पीड ज्यादा है। इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर पर लिखेंगे तो ज्यादा होगा तो आंसर ज्यादा आएगा, डिनोमिनेटर पे लिखेंगे तो हाँ डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा ना तो स्टूडेंट्स वैल्यू क्या होती है, कम होती है ना। डिनोमिनेटर में रखना मतलब क्या, एक चपाती है उसको 100 पार्ट्स करने मतलब उसको 100 डिविजन्स करने, डिवीजन बोलते हैं ना, या डिनोमिनेटर बोलते हैं। डिनोमिनेटर मतलब हम कितने पार्ट्स से उसको डिवाइड कर रहे हैं। तो टाइम का बारे में कैसा है, अगर यहाँ से मुझे मुंबई जाना है तो मुंबई जाने के लिए मेरे को बहुत कम टाइम लगता है तो मेरी स्पीड क्या होती है, ज़्यादा होती है ना। सो व्हेन टाइम इज लेस द स्पीड इज more, when the time is more the speed is very less ना। मैं मुंबई में जाता हूँ पर 10 दिन के बाद जाता हूँ तो मेरी स्पीड क्या होगी, बहुत कम होगी ना, ऐसा ना। So speed is very less if I take more time, if I take more time the speed is very less। This means what, the speed is inversely proportional to time, speed is inversely proportional to time, है ना। लेकिन इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, टाइम बढ़ेगा तो स्पीड क्या होगी, कम होगी, है ना। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। अगर टाइम बहुत कम है तो स्पीड क्या होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होती है ना। स्पीड ही बहुत ज्यादा होती है। कैसे समझते हैं हम, स्पीड ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि कम समय में वो उतना डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिवीजन ही बहुत कम है। आई बात समझ में, 1 मीटर आपको ट्रैवल करने पर बहुत कम समय में, बहुत वन चपाती के आपने बहुत कम टुकड़े किए, कुछ टुकड़े नहीं किए, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। टाइम बढ़ेगा मतलब आपने बहुत सारे उसके टुकड़े किए, 1 2 3 4 5 और 1 टुकड़ा किया तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, स्पीड की। बहुत टाइम आपने बढ़ाया, डिवीजन अपने बहुत 1 2 3 4 5 डिवीजन किया तो आंसर बहुत कम है। और बहुत सारे डिवीजन किए, टाइम
टाइम तो हमने बहुत पढ़ा है, तो आपका डिवीजन क्या होगा, डिवीजन भी बहुत बड़े नंबर से होगा, तो आपका हर एक वैल्यू बहुत छोटी सी डिवीजन पार्ट मिलेगी, है ना आपको। बहुत डिवीजन आपने बहुत बड़े नंबर से डिवाइड किया तो छोटे 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 डिवीजन्स होंगे, तो जब आप डिनोमिनेटर में बहुत बड़ी वैल्यू रखते हो तो बहुत डिवीजन्स होते हो, तो उसका एक एक पार्ट आंसर होता है ना। डिवीजन करने के बाद एक एक पार्ट डिवीजन का वो आंसर होता है। तो इसीलिए हम लिखते हैं कि जब टाइम बहुत ज्यादा होता है तो स्पीड की वैल्यू बहुत कम आती है, इसलिए हम डिनोमिनेटर में रखते हैं उसको, स्पीड का फार्मूला में। पर डिस्टेंस जितना ज्यादा कवर होगा उतना ही स्पीड है, स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम, स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम। स्पीड का ये फार्मूला है, और डिफाइन कैसे करेंगे हम, ओके। स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट मतलब क्या, कितने समय में कितना है, मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं उसको, है ना, फॉर दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम हाउ मच इज द डिस्टेंस, सो डिस्टेंस कवर्ड and how much time it takes that for that covering that distance, that is the speed. So what is speed? Speed is nothing but rate of change of distance with respect to time. Okay, speed is defined as rate of change of distance with respect to time. I got समझ में, simple definition. Okay, yes, हो गई बात समझ में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। यस, चलो अभी हमको स्पीड पता चला, अभी वेलोसिटी मिलेगी, वेलोसिटी के पास जाएंगे। स्पीड पता है सभी को, स्पीड पता चला, वेरी गुड। वेलोसिटी, व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी मतलब क्या? व्हाट इज वेलोसिटी स्टूडेंट्स? क्या होती है वेलोसिटी? स्पीड ही होती है, पर वेलोसिटी क्या होती है, एक डायरेक्शन वाली क्वांटिटी। जैसे देखा अभी हमने बात किया डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, नेगेटिव होता है कि कभी नहीं होता है ना। जैसे डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता स्टूडेंट, वैसे ही स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या नेगेटिव नहीं हो सकती है? स्पीड भी एक वैल्यू है जो नेगेटिव नहीं हो सकती है ना। हाँ, स्पीड आल्सो कैन नॉट बी नेगेटिव। Therefore, speed cannot be negative. Speed क्या हो सकती है स्टूडेंट? स्पीड cannot be negative. क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती? क्योंकि स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। स्पीड इज नथिंग बट व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, है ना। डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव, टाइम आल्सो कैनॉट बी नेगेटिव, है ना। टाइम कैनॉट बी नेगेटिव, but therefore speed also cannot be negative. So speed also cannot be negative. For students, velocity can be negative. Okay? Velocity can be negative because what is velocity? Velocity is what? Displacement upon time. Velocity is what? Displacement upon time. है ना? क्या होती है वेलोसिटी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी ए टू बॉडी बी, बॉडी ए टू बॉडी बी। इफ यू गो ना, then you are going, let us traveling 10 kilometers, you are traveling 10 kilometers. In which direction you are traveling 10 kilometers? West. Let us take east direction में travel 10 kilometers east, है ना। पर यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन इज इम्पोर्टेंट, अदरवाइज इफ यू से आई एम ट्रैवलिंग 10 किलोमीटर दैट मींस ओनली आई एम जॉगिंग, है ना। हम जब सिर्फ जॉगिंग करते हैं 10 किलोमीटर में, सिर्फ हम जॉगिंग करते हैं 10 किलोमीटर में, तो हम सिर्फ ईस्ट में जा रहे हैं। ओके, हमको सिर्फ हम जब जॉगिंग करते हैं ना, हमको डायरेक्शन पता नहीं रहता है ना। सिर्फ मैंने आपको कहा कि मैं हर रोज सुबह 10 किलोमीटर जॉगिंग करता हूँ, तो वो मेरा डिस्टेंस रहेगा। पर अभी मैंने कहा कि मैं 10 किलोमीटर ईस्ट जा रहा हूँ, 10 किलोमीटर कहाँ पे जा रहा हूँ? ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा हूँ, तब मुझे डायरेक्शन भी पता चल रहा है ना। तो वो चीज 10 किलोमीटर ईस्ट क्या होगी? इट विल बी डिस्प्लेसमेंट, इट विल बी व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। बट सेम 10 किलोमीटर ईस्ट आई कम बैक,
I come back, then it will be what? From B to A. From B to A. If I go 10 kilometers west, if I go, है ना, ये 10 kilometers ऐसे जब जाओगे, it will be opposite to this first journey, है ना. So if I consider first journey as positive, then my second journey is in opposite direction. Whenever you oppose the direction, then the displacement becomes negative. What is that? The displacement can be negative if the direction is opposite. If the direction is opposite, है ना. ये डायरेक्शन को हमने अगर पॉजिटिव कर दिया, ये डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव. ये डायरेक्शन क्या होगी? नेगेटिव होगी, है ना. So 10 kilometer west is a negative direction. 10 kilometer west is a negative direction, है ना. So displacement can be negative अगर डायरेक्शन opposite होगी. Therefore velocity also can be negative. Therefore velocity also can be negative, है ना. ये सब ना, अगर मैं इस चीज के बारे में बात करूंगा, द मोशन ऑफ इन या लेट अस टेक ट्रेन के बारे में बात करूंगा, है ना. द ट्रेन है वो यहाँ लेट अस टेक फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, मुंबई टू दिल्ली ऐसे जा रही है, फिक्स स्ट्रेट लाइन में जा रही है. लेट अस टेक एक स्पेस रूट है, लेट अस टेक इट्स वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना. सी व्हेनेवर द मोशन इज इन स्ट्रेट लाइन, डायरेक्शन फिक्स है. डायरेक्शन फिक्स है तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे ना, तो ये डिस्टेंस नहीं बनेगा. ये क्या बोल सकते हैं उसको? अभी डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं. क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट. तो लेट अस टेक कितना किलोमीटर है? लेट अस टेक 1000 किलोमीटर्स फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली. मुंबई टू दिल्ली इज 1000 किलोमीटर्स. सो इट्स डायरेक्शन इज फिक्स्ड. उसकी डायरेक्शन क्या है? फिक्स है. जब ये फिक्स डायरेक्शन में मूव होगा 1000 किलोमीटर्स, एंड इट्स कवरिंग फिक्स्ड 1000 kilometers in one direction only, it's traveling one common direction 1000 kilometers in 1 second every time. 1000 kilometers direction is fixed, then you call that direction as let us take positive direction. ये डायरेक्शन को हमने क्या कहा? पॉजिटिव डायरेक्शन. पर अगर दिल्ली से फिर से वो मुंबई आती है तो हम उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन. उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव डायरेक्शन. सो अंडरस्टूड? नाउ इन दिस केस द स्पीड विल बी पॉजिटिव और द वेलोसिटी विल बी पॉजिटिव, and in this direction velocity will be negative. आई बात समझ में? वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है ना. यस, ओके, क्लियर है? यस. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हम जाते हैं वेलोसिटी के बारे में. हमको पता चला वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव. एक क्वेश्चन लेगा. द क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी. Distinguish between speed and velocity. तो स्पीड मतलब क्या? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम एंड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. थोड़ा डिफरेंस करें. व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट in given interval of time and speed cannot be negative. Speed cannot be negative, है ना. वैसे बात करेंगे नेक्स्ट वेलोसिटी. व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम. It has unique direction. Velocity is, what is velocity? Velocity is displacement traveled by an object by an object in given interval of time
It has unique direction. Unique direction. वाह, ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। इसकी डायरेक्शन हमेशा फिक्स्ड होती है और यूनिक होती है, कुछ ना कुछ रहती है, कुछ ना कुछ अलग से खुद की रहती है। व्हाट इज यूनिक? जो खुद की पहचान है ना, इट इज ऑफ इट्स ओन, है ना। जेव्हा स्वतःचं काहीतरी असेल तेव्हा आपण म्हणायला लागतो इट हॅज गॉट युनिक डायरेक्शन। क्लियर है? और क्या हम डिफरेंशिएट पॉइंट बोल सकते हैं? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। हां, इट डज, व्हाट अबाउट यू कैन से स्पीड डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन। It does not have any direction, है ना। क्यों? स्पीड ऐसे 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 घूमकर कैसे भी अगर उसको स्पीड हो सकती है, पर नहीं वेलोसिटी मतलब नहीं फिक्स्ड, या तो ऐसे या तो ऐसे, उसकी फिक्स्ड वैल्यू होगी, है ना। या स्पीड कैसे भी होगी तो आ सकता है ना। यूनिक डायरेक्शन, यूनिक डायरेक्शन। ओके, व्हाट एल्स कैन यू डिफरेंशिएट? और क्या आपको पॉइंट बोल सकते हो आप इसको डिफरेंशिएटिंग करने के लिए? या स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, या स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। ये पॉइंट आपने याद रखना है, यहां पर लिखो स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव, एट द मोस्ट इट कैन बी जीरो। और यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? स्पीड कैन बी what? Speed can be negative as well as और है ना। ये बात समझ में आ गई आपको? क्लियर कट? ये बातें आपको क्लियर समझ में आ गई है ना। या अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज एक्सेलरेशन, है ना। यस, ये क्वेश्चन भी आपको करना है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट? एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन, है ना। गाड़ी का एक्सेलरेशन होता तो क्या होता है बताओ? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन मतलब क्या है ना, गाड़ी का कुछ स्पीड है और आपका दोस्त पीछे बैठा है, आपको अरे क्या गाड़ी चला रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चल, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जल्दी वैसे ही चलने पड़ेगा। तो दोस्त आपको बोलेगा अरे मेरा दोस्त गाड़ी स्पीड से नहीं चला रहा है, तो आप क्या करोगे? तो अरे नहीं, मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है गाड़ी स्पीड चलाने को, तो मेरे को स्पीड चलाने हैं, तो क्या करूँगा मैं? तो क्या करोगे आप? गाड़ी को पेडल नहीं होता है, तो क्या होता है? गाड़ी को रेस करते हैं ना गाड़ी, आप गाड़ी को रेस करोगे। सूरज से जब गाड़ी को आप रेस करते हो ना, तो भी वहाँ पे आपको कुछ घुमाना होता है। क्या घुमाते हो आप? उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जो हम प्रोसेस को स्पीड चेंज करते हैं, स्पीड क्या है? स्पीड चेंज करना है। स्पीड फिक्स्ड होती है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। स्पीड जब फिक्स होती है तो एक्सेलरेशन नहीं होता। आई बात समझ में? आप 40 किलोमीटर स्पीड से जा रहे हो तो एक्सेलरेशन है क्या? नहीं है। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन मतलब क्या कि स्पीड का है ना वो कांस्टेंट नहीं रहता। स्पीड क्या होता है? अलग अलग वैल्यूज लेने लगता है। जब स्पीड अलग अलग वैल्यू लेने लगता है ना, स्पीड चेंज होने लगता है ना, वो change in the speed of any object, तो वो change in speed कितना है, that quantity, और वो कितना चेंज हो रहा है और कितने समय में हो रहा है। आई बात समझ में? change in speed और वो कितने समय में हो रहा है। change in speed in what amount of time, अगर कम समय में ज्यादा स्पीड चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा है, कम टाइम में कम है तो ठीक ठाक है। और डिस्टेंस चेंज स्पीड हो रहा है पर बहुत टाइम ले रहा है तो एक्सेलरेशन बहुत स्लो है। तो व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज नथिंग बट इट इज अ रेट। रेट मतलब क्या? व्हाट इज मीन बाय रेट? रेट मतलब हम क्या करते हैं उसको, वी आर कंपेयरिंग इट। आई बात समझ में? रेट मतलब क्या? हम कंपेयर कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन मतलब क्या? इट इज द रेट ऑफ व्हाट? वेलोसिटी change. Acceleration is nothing but the rate of change of velocity comparing to time के साथ कंपेयर करना है।
तो हमको फिर से कंपेयरिंग टू टाइम जब बोलते हैं ना, तो भाई वही बात आती है फिर से, टाइम जितना ज्यादा लेगा वो उतना उसका एक्सेलरेशन कम होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, फिर से वही बात, एक्सेलरेशन को, टाइम को कहाँ पे रखना है, करेक्ट डिनोमिनेटर में। एक्सेलरेशन मतलब क्या, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्सेलरेशन is velocity, change in velocity, क्या बोलते हैं, change in velocity, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, this is acceleration. What is acceleration, student? Acceleration मतलब क्या, acceleration मतलब the rate of change of velocity with respect to time, है ना, yes. So acceleration is the rate word में यूज कर रहा हूँ, क्या यूज कर रहा हूँ, rate is the rate of change of velocity with compared to time, या with respect to time भी बोल सकते हैं, है ना, with respect to time ऐसा ही हम इसको बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन क्या है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कंपेयर्ड टू टाइम। कंपेयर्ड टू टाइम मतलब है ना, ऐसे ही बात करो कि अगर रेट हम मार्केट में जा रहे हैं, तो लेटेस्ट यहाँ पे शुगर है मार्केट में, है ना, तो शुगर वहाँ पे प्राइस टैग भी लिखा है 25 पर केजी, ₹25 पर केजी। तो मैं इसको हमेशा, अगर बहुत सारा शुगर है यहाँ पे, तो वहाँ पे उसने ऐसे लिखा है ₹250 पर 10 केजी। ये भी सही है और ये भी सही है, ये दोनों रेट सेम है। मैं आपको पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन, ये दोनों रेट सेम है। अगर 1 केजी को आपको 25 रुपीस देना पड़ रहा है और 10 केजी को आपको 250 रुपीस देना पड़ रहा है, तो ये क्या दोनों, आप दोनों में कुछ वही डील एक्सेप्ट कर सकते हो ना। सिर्फ 1 केजी देना है मुझे 25 रुपीस देना, 10 केजी देना 250 रुपीस देना, ये दोनों रेट्स आर सेम। व्हाई दे आर सेम रेट्स? रेट मतलब क्या, इट इज द, यहाँ पे रेट मतलब क्या, रुपीस डिवाइडेड बाय व्हाट, मास या वेट लिख सकते हो, केजी वेट है ना, ये वेट की स्पेलिंग होती है WEIGHT, है ना, वेट। 1 केजी वेट को आप 25 रुपीस देखो। सो यहाँ पे हमने वेट को डिवाइड किया, यहाँ पे देखो रुपीस है यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है, वेट है ना। यहाँ पे वेट कितना है, 10 केजी। सो 10 केजी वेट है, 10 केजी वेट है 250 रुपीस है, तो 250 रुपीस इज द amount of money for 10 kg weight। इसका मतलब रेट क्या होगा, 250 रुपीस देने पड़ रहे हैं, हर एक 10 kg में से हर एक के ऊपर वो 250 आएगा ना। रेट मतलब क्या, कि इट इज द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विथ रिस्पेक्ट और विथ कंपेयरिंग टू अनदर थिंग। इसीलिए हम उसको पर यूनिट, जब हम रेट पूछते हैं तो पर यूनिट वेट हम पूछते कभी 1 किलो के में 1 केजी के पीछे कितना हम रुपीस उसको लगा रहे हैं। तो व्हाट इज रेट, रेट इज द अमाउंट ऑफ चेंज ऑफ वन सब्सटेंस विद रिस्पेक्ट टू अनदर। उसी तरह व्हेन यू आर डिवाइडिंग रुपीस, अमाउंट ऑफ रुपीस दैट यू हैव विद द अमाउंट ऑफ वेट दैट यू आर गोइंग टू गेट, यू गेट अ रेट। आपको रेट क्या पता चला, यहाँ पे 25 रुपीस पर केजी, 25 रुपीस पर 1 केजी। यहाँ पे भी है 250 रुपीस पर 10 kg, 250 पर 10 kg मतलब 25 पर 1 kg। वैसे यहाँ पे भी होता है, वैसे यहाँ पे भी होता है। कैसे, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर हर एक 1 आवर में कितना चेंज हो रहा है, हर आवर में उतना चेंज होते रहता है ना। और एवरी 1 आवर के इंटरवल में वो कितना चेंज कर रहा है, इट इज वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल देयर इज अ मैन इन 1 आवर, in 1 hour he is walking, let's say 1 minute है ना, 1 minute, in 1 minute his speed was 2 meters per second, now in 1 minute his speed became
4 meter per second. In next 1 minute, its speed became 6 meters per second. So what is that you are observing in these two situations? यहाँ पे सिचुएशन है और यहाँ पे भी एक सिचुएशन है। यहाँ पे 1 मिनट में 2 मीटर का चेंज का स्पीड हो गया। What is this change in velocity? 4 minus 2, 2 meters per second. And this has happened in how much time? In 1 minute. आई बात समझ में? यहाँ पे उतना ही है। 6 minus 4 is 2. Time is also 1 minute. So again 2 meters per second per 1 minute, है ना? तो change in speed per unit time. Change in speed per unit time. जब 1 मिनट में मैं इतना रेस कर सकता हूँ तो 2 मीटर पर सेकंड से, है ना? So what is acceleration in 1 second? Change in speed per second. How much meter per second you are changing? So meter per second, meter per second square adding meter per second square. ये होता है acceleration. I बात समझ में? Change in velocity per unit time. ठीक है? Clear है? Yes. Okay. अभी आपको करना है ग्राफ्स। Okay, let us go to the next point, that is graphs. एक्सेलरेशन के बाद और कुछ पॉइंट बचा है हमारा सर्कुलर मोशन, है ना? यस, व्हाट इज सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन मतलब क्या है? सर्कुलर मोशन व्हाट इज सर्कुलर मोशन? Circular motion मतलब क्या? If a body covers a circular path, if a body covers a circular path in certain interval of time, then you say that the body is in circular motion. एक body circular motion में कब होती है? जब when it covers a circular path in certain interval of time. Okay? Whenever body covers circular path certain interval of time, then the body is said to be in circular motion. Okay, then you say that the body is in circular motion. Clear students? इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है बढ़िया से? यस, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यस, एक्सेलरेशन में भी या सर्कुलर एक्सेलरेशन हमने देखा स्टूडेंट्स कि है कोई चीज सर्कुलर मोशन भी है, तो एक्सेलरेशन में भी 2 टाइप्स हैं। तो हमारे पास पॉइंट्स रह गए थे। व्हाट आर द 2 पॉइंट्स इन एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन में भी हमारे 2 पॉइंट्स हैं। क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन में भी हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। व्हाट आर दोस? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, non-uniform acceleration. क्या है दो चीजें? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब जहां पे एक्सेलरेशन मतलब चेंज ऑफ स्पीड पर टाइम, हर बार उतना ही टाइम में उतना ही स्पीड चेंज हो रहा है, तो आप बोलेंगे एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। मींस व्हाट? Acceleration is uniform. Means what? If the acceleration is constant, means what? अगर हमने देखा acceleration की definition है ना, क्या?
1 second. The velocity of the body changes by equal amount in equal interval of time. The velocity of the body changes by equal amount in equal interval of time. जैसे हमने यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करी, when the velocity of the body changes in equal amounts in equal interval of time. The body is said to be in uniform motion. What is non-uniform motion? When the body is not covering equal velocity, equal amount of time. When the body क्या कर रहा है? Unequal amounts of velocity. When the velocity of the body changes in unequal amounts in equal interval of time. In equal interval of time, then the body is said to be in non-uniform motion. मतलब क्या कि एक बॉडी है और वो बॉडी क्या कर रही है, वेलोसिटी उसका चेंजिंग है, it is kind of changing its velocity, but what happens, the amount of velocity in equal interval of time is not same, is not equal. मतलब क्या, first 1 minute में वो 2 मीटर पर सेकंड कवर कर रहे हैं, next 1 मिनट में वो 4 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं, next 1 मिनट में वो 10 मीटर पर सेकंड कर रहे हैं, और 1 मिनट में और कुछ चेंज है, तो उसका यूनिफॉर्म है कि एक्सेलरेशन नहीं है. एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब क्या कि हर 1 मिनट में उतना ही same amount of velocity change in 1 minute, 2 meters per second in 1 minute, 2 meter per second in 1 minute, 2 meter per second in 1 minute, जो हमने डायग्राम यहाँ पे निकाला था. So what is that? That is uniform acceleration. What is non-uniform acceleration? In 1 minute, constantly for every minute, it is changing it's having different velocities, है ना, unequal velocities. So when the body is when the body is changing its velocities unequally, in equal amount of time, you say that the body is in non-uniform motion, है ना? Yes. अब इधर बैठते हैं ग्राफ्स, है ना, प्रिंसिपल ग्राफ्स. Yes. What are the graphs? Different types of graphs. कौन से ग्राफ्स है आपके पास? Yes. हमारे पास देखो कौन से ग्राफ्स हैं. We have distance time graph, distance time graphs, है ना. Yes, distance time graph में हम क्या सीखे थे, x एक्सिस पे होता है डिस्टेंस, y एक्सिस पे होता है टाइम, y एक्सिस पे होता है डिस्टेंस, है ना. क्या दिस इज इट. तो चीजें है ना. व्हाट इज दिस, टाइम बहुत चेंज हो रहा है पर डिस्टेंस वहां पे चेंज ही नहीं हो रहा है ना. बॉडी इज एट रेस्ट, द बॉडी इज एट रेस्ट, व्हाट इज दिस, बॉडी इज एट रेस्ट. मतलब क्या, टाइम बढ़ रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, तो डिस्टेंस उसका पोजीशन क्या है, s मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट. लेट अस टेक इट 4 मीटर्स है, तो हमेशा वो 4 मीटर्स से पे ही पड़ा हुआ है. एक यहां पे पोल क्या है, रेफरेंस पॉइंट, यहां से 4 मीटर्स पर एक गांव है ना, उसका नाम कुछ तो है, वहां पे ये ऑब्जेक्ट है, मैन, एक आदमी खड़ा है, 1 सेकंड हुआ वो 4 मीटर्स पर गए, 2 सेकंड हुआ फिर भी वो 4 मीटर्स पर गए, 3 सेकंड हुआ फिर भी वो 4 मीटर, पूरा घड़ी घूम रहा है, टाइम
बढ़ रहा है यहाँ पे एक्सिस पे और वो 4 मीटर्स के ऊपर ही खड़ा है, 4 मीटर्स के ऊपर ही खड़ा है। इसका मतलब क्या, द बॉडी इज एट रेस्ट। ऐसे ही हम देखेंगे कि ऐसे यहाँ पे क्या हो रहा है, घड़ी बढ़ रही है, ये चेक पोस्ट है यहाँ पे और वो 4 मीटर्स के पहले खड़ा था, आदमी था हमारा 4 मीटर्स के पहले खड़ा था, पर 1 सेकंड के बाद वो 5 मीटर कर गया और 1 सेकंड के बाद 6 मीटर कर गया। मतलब शुरू में कितना था, when the clock started it was at 4 मीटर पर सेकंड, पर 1 सेकंड होने के बाद वो 5 मीटर्स पे गया। 1 सेकंड होगा ये 5 सेकंड्स है, तो ये दोनों साथ में आएंगे। 3 सेकंड हो गए, 1 सेकंड है, ये 0 पे था, ये 1 सेकंड के बाद ये 2 सेकंड और 2 सेकंड हो गए। 2 सेकंड के बाद में कितना गया, 4 5 6 मीटर्स पे गया, 4 5 6 मीटर्स पे गया हो गया। ऐसे 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 वो जा रहा है। तो जैसे समय बढ़ रहा है वैसे ही डिस्टेंस भी बढ़ रहा है। तो ग्राफ क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगा। ग्राफ स्ट्रेट है मतलब क्या, टाइम बढ़ रहा है तो उसका पोजीशन नहीं बढ़ रहा है, पोजीशन वहां पे है। डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। हां, व्हाट इज दैट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट पोजीशन इन रिस्पेक्ट टू रेफरेंस, इट इज 4 मीटर्स नाउ, है ना, इन राइट डायरेक्शन। ओके, सो पॉजिटिव बोला, राइट डायरेक्शन को +4 बोला, तो +4 और बढ़ रहा है, +5 मीटर्स हो रहा है, +6 मीटर्स हो रहा है जब टाइम 1 to 0.2 सेकंड्स हो रहा है। तो इसका मतलब क्या, दोनों चीजें चेंज हो रही है, टाइम भी बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी बढ़ रहा है। सो देयर इज अ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड देयर इज अ चेंज ऑफ टाइम। देयर इज अ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड देयर इज अ चेंज ऑफ टाइम। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इधर से इधर तक कितना चेंज हो रहा है, कब, इतने समय, इतना डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, कब, इतने समय, इतना डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, इधर से इतना डिस्टेंस कब, इतने समय में कवर हो रहा है। तो हर एक बार आपको यहाँ पे कुछ एंगल बनेगा, क्या बनेगा, एंगल बनेगा, एंगल बनेगा स्टूडेंट्स। तो एंगल का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या, है ना। अगर एक बॉडी 1 सेकंड में यहाँ से 4 से 5 आ रहा है, तो एक बॉडी 1 सेकंड में 4 से सीधा 6 आ रहा है, ऐसे गया वो, इसका मतलब क्या, कम समय में 1 सेकंड में वो ये पहली बॉडी 1 मीटर कवर कर रही है और 1 सेकंड में बॉडी 2 मीटर कवर कर रही है, इसलिए वो यहाँ तक पहुँचा है ना। सो जितना वो जो एंगल है वो बढ़ेगा या उसका स्लोप है वो बढ़ेगा, उसका मतलब है 1 सेकंड में वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर जा रहा है। मतलब ऊपर कौन है, डिस्प्लेसमेंट है ना, वाई एक्सिस पे कौन है, डिस्प्लेसमेंट है। तो वाई एक्सिस के ज़्यादा क्वांटिटीज आ रहे हैं कम ही समय में, कम ही छोटे एंगल्स पे, है ना। तो आपने अगर ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, तो स्टूडेंट्स, है ना, जितना ये एंगल बढ़ेगा आप क्या बोलोगे कि y की वैल्यू बढ़ रही है, x की वैल्यू, कम वैल्यू के लिए y की वैल्यू बढ़ रही है ना। सो और हमने अभी क्या देखा, रेट के बारे में। रेट मतलब क्या, चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, है ना, डिस्टेंस कवर्ड इन गिवन अमाउंट ऑफ टाइम। इतने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, अगर ये डिस्टेंस इतना कवर कर रहा है तो कम टाइम में कवर कर रहा है, तो चेंज इन डिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टाइम, इसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं ना। सो s वर्सेस t ग्राफ है ना, s वर्सेस t ग्राफ में आपको क्या लिखा है, यहाँ पे आपको अगर ये बॉडी क्या कर रही है, इट इज कवरिंग डिस्टेंस, s की कुछ वैल्यू चेंज है, चेंज मतलब यहाँ से यहाँ तक, है ना, यहाँ से यहाँ तक, दिस इज द चेंज इन s, डेल्टा s, दिस इज द चेंज इन टाइम, है ना। टाइम इतना, इधर से ये दो पॉइंट्स को हमने कंसीडर a b और c। c to b क्या हुआ, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज हुआ, a to c क्या हुआ, बॉडी का टाइम चेंज हुआ। तो डेल्टा s मतलब bc, डेल्टा s मतलब क्या है, bc इतना वो बॉडी का पोजीशन का चेंज हुआ। पर वो b c to b इतना चेंज होने के लिए ये दो पॉइंट्स हमने कंसीडर कर लिया। तो ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस का चेंज इतना है, ये दो पॉइंट्स के बीच में टाइम का चेंज इतना है, तो इतने टाइम में इतने जा रहा है, मतलब इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लगा। तो डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन, इसको हम क्या क्वांटिटी से नाम देते हैं, वेलोसिटी। तो डेल्टा s अपॉन डेल्टा t को हमने वेलोसिटी बोला था। आई बात समझ में, व्हाट इज वेलोसिटी स्टूडेंट्स, वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी मतलब द डिस्प्लेसमेंट का रेट एज कंपेयरिंग टू टाइम। टाइम में कितना टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमने कर दिया, तो आपको क्या पता चला, डिस्प्लेसमेंट का रेट कंपेयरिंग टू टाइम मतलब वेलोसिटी को डिफाइन किया है। वेलोसिटी इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी यू कैन गेट बाय डिवाइडिंग डेल्टा s विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डेल्टा s क्या होता है, y होता है, डेल्टा s क्या होता है, x होता है। तो y अपॉन x
अगर y की वैल्यू बढ़ेगी तो एंगल भी बढ़ेगा और ये स्लोप राइजिंग होगा, है ना। सो इफ यू वांट टू फाइंड द वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू व्हाट, स्लोप। स्लोप मतलब ये स्लोप कितना है, स्लोप हाई राइजिंग स्लोप है तो वेलोसिटी ज़्यादा है ना। 1 सेकंड में ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, और इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम इट्स कवरिंग मोर डिस्प्लेसमेंट, स्लोप इज मोर बिकॉज इट्स राइजिंग, दैट मींस distance more displacement is there in the time taken. The time taken में displacement क्या more है, so time taken is there, the displacement is getting more, so slope is rising, velocity is more, displacement is covering time taken, so velocity will be increasing. So slope कैसे पता चल रहा है आपको, tan of theta, ये अगर आपको थीटा कुछ नहीं बताया उसका tan थीटा जो tan थीटा मतलब ऑपोजिट साइड पर एंड साइड, ये आपको बाद में समझेंगे. सो द स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज नथिंग बट वेलोसिटी. ये ग्राफ स्ट्रेट है मतलब क्या, स्ट्रेट है मतलब हमेशा क्या रहेगा, when the graph is straight line that means when the graph is straight they are collinear है ना. collinear ग्राफ में क्या होता है, ये एंगल फिक्स्ड होता है ना, द एंगल इज फिक्स्ड, the angle is fixed, ठीक है ना, because all are on similar triangles, the angle is fixed, its velocity is fixed. When the graph is straight line, the points are collinear, है ना, they are covering, they are having same angle, they are having same slope, है ना. line straight है मतलब slope भी वही है ना, when the slope is fixed, when the line is straight line having certain fixed, you say that velocity is fixed or it has got uniform velocity. ठीक है, आई बात समझ में, ये बात फिर से हम लिख लेते हैं यहाँ पे. It has got fixed velocity. The velocity is fixed for a constant slope. For a straight line slope, velocity is fixed or uniform velocity. Okay, if the ST graph, या displacement time graph is curved, then velocity is not uniform, it will be non-uniform velocity. आई बात समझ में? ओके, तो आज के लिए हम बस इतना ही करते हैं और आपको थोड़ी देर बाद कल के लेक्चर में हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ देके इक्वेशन से प्रॉब्लम्स